Hello children, welcome back to today's music class. Hi, I am Bhagyeshri Chavan from Nagesh Karajgi Orchid School. Last week we have learned definition about music, sound, naad and svar. Also we learned a melodious song Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu and also Svaravali. Now I am going to give you more information about svar, also saptak. Now let's start today's class. As usual, with prayer. Sit straight, close your eyes, join your hands, bow your head down. Start with prayer Vakratunda Mahakaya and also Gurura Brahma, Gurura Vishnu. Ready? Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Slowly open your eyes, do palming. Svar. Svar is nothing but a musical note. Last period you also learned swar. Swar is a Sanskrit word that means a note in saptak, musical sound which is sweet by itself called swar. Swar also called sur. There are 22 shrutis, out of which 12 shrutis called swar. There are 12 swaras in Hindustani classical music. You already learnt about 7 swaras. There are 2 types of swar, Shuddha swar and Vikrit swar. Out of 12 swara, 7 swar is Shuddha swar. There is a belief that the swar means in Hindustani classical music where there are 2 types of swar, Shuddha swar and Vikrit swar. Out of 12 swaras, 7 are called Shuddha swar. This is a belief that the 7 swaras in Hindustani classical music were conceived from the sound of nature. The 7 swaras, as we all knows, they are Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Second, Vikrit swar. Those swar who is upper or lower from its place. It has also 2 types. Flat or soft swar means komal swar. These are Re, Ga, Dha, Ni. Second, sharp swar. Sharp swar means Tivra swar. In 12 swaras, only one swar is Tivra. It is Ma. This is upper from its place. And Rega Dhani is lower from its place. So, this swara is called Komal swar and Ma Tivra swar. There is one more aspect of division of swara by which swar are called into 2 parts. Movable swar and immovable swar. Movable swar means chala swar. Those swar whose shuddha swar as well as vikrut, soft or sharp called movable swar. Immovable swar means achal swar. Those who are not soft or not sharp, always shuddha, and they are sa and pa. You can understand swara more easily by this image.
पीरियड में आपने स्वर के बारे में सीखा है। स्वर जो ध्वनि स्वयं शोभायमान होती है, जो संगीत उपयोगी नाद है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर शब्द स्व तथा र से बना हुआ है। जो स्वर स्पष्ट और मधुर हो और जिसकी आवाज गूंजदार हो, वह स्वर कहलाता है, जिसे सुनकर मनुष्यता को प्रसन्नता प्राप्त होती है। पंडित आहुबल का कहना है कि जो स्वर मनुष्य के चित्त को या सुनने वाले के चित्त को प्रसन्न करे, वही सुर स्वर कहलाता है। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 7 सुर माने गए हैं। ये 7 सुर संगीत का आधार है। जो आपने सीखे हैं वो है सा रे ग म प ध नि सा। इसमें सा और प ये 2 स्वर स्थिर है, अचल है, और ये स्वर अपने स्थान से हिलते नहीं, इसलिए ये अचल है। और रे ग ध नि ये स्वर अपने स्थान से नीचा जाकर कोमल कहलाते हैं, इसलिए ये कोमल स्वर है। और म ये तीव्र स्वर है, ये स्वर अपने स्थान से ऊंचा जाकर तीव्र कहलाता है। इस तरह से कुल मिलाकर 12 स्वर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में है। इसमें शुद्ध स्वर, जो स्वर अपने स्थान पर स्थिर होते हैं वो स्वर शुद्ध होते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि, ये 7 सुर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। लेकिन विकृत स्वर, कोमल स्वर है रे ग ध नि। अब इसमें सा रे, ये रे शुद्ध रे है, लेकिन सा रे का साउंड चेंज हो गया, तो ये रे हो गया कोमल रे। अपने स्थान से नीचा जाकर ये रे क्या हो गया, कोमल रे हो गया। वैसे ही सा रे ग, ये ग शुद्ध ग है, लेकिन सा रे ग का साउंड चेंज हो गया, ग अपने स्थान से नीचा आ गया, इसलिए ये कोमल ग हो गया। वैसे ही सा रे ग म, ये म शुद्ध म है, सा रे ग म, सा रे ग म, ये म अपने स्थान से ऊंचा हो गया, इसलिए ये तीव्र हो गया। देखो सा रे ग म शुद्ध म, सा रे ग म, ये म तीव्र, इसका साउंड चेंज हो गया। वैसे ही सा रे ग म प, सा और प ये 2 स्वर चल स्वर नहीं है, अचल स्वर है, क्योंकि ये अपने स्थान से हिलते नहीं। सा रे ग म प ध, ये ध जो है ये शुद्ध ध है। सा रे ग म प ध, ध ध, ये ध कोमल ध है, ये ध अपने स्थान से नीचा जाकर कोमल ध होता है। फिर से देखो सा रे ग म प ध, शुद्ध ध, ध कोमल ध। सेम वैसे ही सा रे ग म प ध नि, ये नी शुद्ध नी है, नी, नी, नी का साउंड चेंज हो गया, इसलिए ये नी कोमल हो गया, ये अपने स्थान से नीचा जाकर कोमल हो गया। फिर से नी, नी, और अचल स्वर सा, सा, फिर से सा रे ग म प ध नि सा, ये शुद्ध हो गए। अब सा रे ग म,
शुद्ध म सा रे ग म, तीव्र म सा रे ग म प, स्थिर प सा रे ग म प ध, शुद्ध ध ध, कोमल ध सा रे ग म प ध नि, शुद्ध नि नि, कोमल नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सेम वैसे ही उतरते वक्त भी वैसे ही स्वर होंगे। सा नी, शुद्ध नी सा नी, कोमल नी सा ध, शुद्ध ध सा ध, कोमल ध सा प, सा म, तीव्र म सा म, शुद्ध म सा ग, शुद्ध ग सा ग, कोमल ग सा रे, शुद्ध रे सा, सा रे, कोमल रे सा, सा। इस तरह हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 12 स्वरों की मान्यता है और इन्हीं 12 सुरों पर हमारा पूरा संगीत आधारित है। इन्हीं में से संगीत क्रिएट होता है। जैसे आप सीखते जाओगे वैसे ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज सप्तक। सप्तक मीन्स अ सीरीज ऑफ 7 swaras or notes. It denotes the set of swaras like sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, which comprise a musical scale in Indian classical music. In Western music, saptak called octave. Every saptak contains 12 swaras, 7 shuddha and 5 vikrut. There can be many saptak in music, but practically in music, maximum 3 saptak can be used. In vocal or instrumental, there is no need of more than 3 saptak. Majority of singers are capable of singing in less than 3 saptak. There is 3 types of saptak. Mandra saptak, that saptak whose sound is doubly lower than the sound of the notes of mandra saptak. It is also known as the lower voice register or the lower saptak. Madhya saptak, that saptak whose sound is of medium pitch or is doubly higher than the sound of the notes of mandra saptak is called a madhya saptak. It is also known as the middle voice register or the middle saptak. And third one, tara saptak, that saptak whose sound is doubly higher than the sound of the notes of madhya saptak is called tara saptak. It is also known as the higher voice register or the higher saptak. It can also be said that the saptak which produce the normal voice is called madhya saptak. The voice produced by mandra saptak is lower than the voice of madhya saptak, and tara saptak, the voice of tara saptak is doubly higher than the madhya saptak. Understood? Mandra saptak are presented by a dot below them like this: sa, re, ga, here. This is mandra saptak. Madhya saptak, there is no sign. No sign. Tara saptak, tara saptak are represented by a dot upside them.
सा रे ग, like this. Understood? सात सुर, सात शुद्ध और 5 विकृत स्वरों को मिलाकर संगीत में सप्तक बनता है। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक, ये सप्तक मध्य सप्तक से पहले सप्तक आता है। पहले सप्तक में सा से शुरू होके मध्य सप्तक के सा तक का जो स्वर होते हैं उन्हें मंद्र सप्तक कहते हैं। जैसे अगर मैं प्रमाण सा, यहाँ इस नोट को अगर मैं प्रमाण सा मानती हूँ तो इसके नीचे के जो सुर है वो मंद्र सप्तक कहलाते हैं। जैसे सा, जितने भी नीचे सुर आएंगे वो सभी क्या है, मंद्र सप्तक। अब मैं प्रमाण सा से लेकर सा तक जितने भी स्वर गाऊंगी वो मध्य सप्तक होते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ तक के जितने भी सुर है ये मध्य सप्तक है। अब यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी, जितने भी स्वर यहाँ से आते हैं ये है तार सप्तक। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक हिंदुस्तानी क्लासिकल में माने गए हैं। इन्हीं सप्तक में जितने भी सिंगर्स हैं वो कैपेबल है गाने के लिए और बजाने के लिए, इसीलिए 3 ही सप्तक माने गए हैं। इसके बाद मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए इसके नीचे बिंदु दिया जाता है। मध्य सप्तक को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह नहीं है और तार सप्तक को दर्शाने के लिए उस पे स्वर के ऊपर बिंदु दिया जाता है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट स्वरावली। लास्ट पीरियड में मैंने आपको स्वरावली सिखाया था, वही अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। याद है स्वरावली 1? मेरे पीछे आपको गाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा गाओ।
सा रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 इस तरह से अगर आप एक एक सुर ऐड करते जाएंगे तो आपको इसमें एक मैजिक मिलेगा और एक फन क्रिएट होगा जिससे आपको और अच्छा लगेगा गाने में। और इससे क्या होगा कि आपके जो सुर है वो आपके सुर पक्के हो जाएंगे और आपको कोई भी गीत गाने में आसानी होगी, आसानी से आप कोई भी गीत गा सकते हो। लास्ट वीक में मैंने आपको एक गीत सिखाया था, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। बहुत सारे बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की है, गाया है और मुझे भेजा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसके ट्यून में। जो ट्यून है उसके साथ गाओ। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा गाया है। फिर एक बार मैं आपको वही गीत सिखाऊंगी, उसका ट्यून समझ में आने के लिए। मेरे बात गाना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु,
और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो घर में और मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे आरोह, अवरोह और अलंकार। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।